واو. مٹلتان واٹر فال. مٹلتان ابشار. پریس گاڑی ہے، ایکوا ہے، عام گاڑیاں جو ہے نا وہ یہاں پر موجود ہے. بہت لوگوں نے اس کا ٹرائی کیا ہے، اس کو شفا بھی ملا ہے. دوسرا قسم یہ ہے کہ اس میں یہ اگر بارش بھی ہوتا ہے، سیلاب بھی ہوتا ہے، یہ بالکل صاف رہتا ہے. آپ کو یہاں پر مطلب آنے میں کوئی مشکل پیش آئی؟ اور ہوٹل کیسے ہے، علاقہ کیسا ہے؟ یہ بہت اچھا علاقہ ہے، ہوٹلس بھی بہت کلین ہیں، صاف ہیں، اور مشکلات تو بالکل بھی نہیں. مہوڈن جھیل جاتے ہوئے آبشار، اس کو آبشار ہی کہتے ہیں. جتنی بھی یہاں پر مقامی لوگوں سے میری بات ہوئی تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس کا نام کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں آبشار. تو یہ آبشار ہے اور مہوڈن جھیل جاتے ہوئے راستے میں یہ آتا ہے، تو بہت ہی زیادہ بہترین ہے. اس کے گرنے کا نظارہ بہت ہی زیادہ شاندار ہے، اور لوکیشن جو ہے نا وہ بھی بہترین ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں چھوٹے بڑے گاڑی جو ہے نا وہ آئے ہوئے، خود پریس گاڑی ہے، ایکوا ہے، عام گاڑیاں جو ہے نا وہ یہاں پر موجود ہے. تو برف سے ڈھکے پہاڑ، ہریالی، گھنے جنگلات، اور میں اپنی گاڑی میں یہاں پر پہنچا ہوں ایکوا میں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال ہے، لیکن آبشار تک تو ہم آسانی کے ساتھ پہنچے ہیں، بہت ہی زیادہ بہترین. سامنے روڈ، ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. آبشار. واو. اس وقت ہمارے ساتھ ایک مقامی شہری موجود ہے. ان سے جانتے ہیں کہ اس آبشار کا نام کیا ہے، کیونکہ میں جب بھی آتا ہوں مہوڈن جھیل جاتا ہوں، آتا ہوں تو یہاں رکتا ہوں. جب بھی میں پوچھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں اس کا نام آبشار ہے. تو ٹائم دینے کا شکریہ. کیا نام ہے آپ کا اور کیا کہیں گے، اور آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جی السلام علیکم. بہت شکریہ سر آپ کا. اور میرا نام فضل ہے، اور میں گاؤں ہے ہمارے نیچے مٹلتان، وہاں سے تعلق رکھتا ہوں. اور جہاں تک آپ کا کوشچن کا وہ ہے کنسرن ہے، تو اس کا نام ہے مٹلتان واٹر فال. مٹلتان ابشار. مٹلتان واٹر فال. آپ نے مطلب آپ نے اس کا نام رکھ دیا مٹلتان ابشار. ہم چلو مان لیتے ہیں مٹلتان ابشار بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. تو یہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روڈ اس قابل ہے کہ لوگ اپنی گاڑی میں آ جا سکے؟ ابھی تو انڈر کنسٹرکشن ہے، روڈ کافی حد تک بن گیا ہے نا. ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انڈر کنسٹرکشن ہے، یہ تقریباً انشاءاللہ 1 مہینے تک بن جائے گا. یہاں تک نارملی اگر دیکھا جائے، یہ گاڑی بھی ذرا ناظرین کو دکھا دیں، اس طرح کی گاڑی یہاں تک ایکسیسیبل ہے.
अच्छा ये हाँ। यानी मेरी वाली गाड़ी जो है ना एक्सेसिबल है। यहाँ तक गाड़ी आ सकती है आसानी के साथ। यहाँ से आगे थोड़े से चंद ग्लेशियर्स आए हुए हैं, तो वो तो उनको खैर खुल जाएगा अभी। हाँ वो भी खुल जाएगा। आगे इतना थोड़ा सा रास्तों में हल्का फुल्का मसला है। ZKB वाले कह रहे हैं कि हम 1-2 दिन में वो खोल देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, उनका काम भी काफी जोर व शोर से जारी है। एक्सपेक्टेड ये है कि 2-3 दिनों में इंशाल्लाह वो फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। जी जी जी। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं सयाहों को कि वो क्या करें, आए ना आए? मैं तो कहता हूँ कि टूरिस्ट यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इलाके है। आगे महोरन तक गाड़ी जा सकती है, आगे सैफुल्लाह झील तक भी जा सकती है, और जो असल खूबसूरती है वो सैफुल्लाह झील से आगे शुरू होता है, जिस तरह डोंचारगल हो गया। उसके अलावा 3-4 पॉइंट्स और है जो महोरन ये से गाड़ी इनकी दिखाई, ये गाड़ी भी आ रही है, देखो बिल्कुल ये गाड़ी ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल यानी बहुत नीचे है लेकिन ये गाड़ी भी आई है। अच्छा, डोंचार तक आप पहुंचे। आबशार है और जगह भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और कैंपिंग भी कर सकते हैं। Five 7 444 अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है, कहाँ से आप लोग आए हैं और कैसा लगा आपको? मेरा नाम मिनाहिल है एंड वी आर फ्रॉम इस्लामाबाद। हम लोग तकरीबन 2 डेज हो गए यहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं एंड ये लाइक ट्रैवलर्स के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, आपको यहाँ पर मतलब आने में कोई मुश्किल पेश आई? और होटल कैसे है, इलाका कैसा है? ये बहुत अच्छा इलाका है, होटल्स भी बहुत क्लीन है, साफ हैं और मुश्किलात तो बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त मैं चश्मे शफा में मौजूद हूँ। जितने भी सयाह आते हैं तो वो ज़रूर यहाँ रुकते हैं और यहाँ के मज़ेदार जायके में बेमिसाल पानी जो है ना वो ज़रूर पीते हैं। तो इनसे जानते हैं कि वाकई इसमें कोई शिफा है नहीं है, किस तरह है। टाइम देने का शुक्रिया। क्या कहेंगे, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है सनीकुल। अच्छा, मैं यहाँ का मुकामी हूँ। ठीक है। गाँव मेरा आगे मटिलतान में, पीछे मटिलतान में। ठीक है। यहाँ के मुकामी है। ये पानी इधर से तकरीबन 2 मिनट का रास्ता है, दरख्त के नीचे से निकल रहा है। अच्छा, 2 मिनट का रास्ता मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो दरख्त के नीचे से निकल रहा है ये सारा पानी। बहुत लोगों ने उसका ट्राई किया है, उसको शेफा भी मिला है,
दूसरा किस्म ये है कि उसमें ये अगर बारिश भी होता है, सैलाब भी होता है, ये बिल्कुल साफ रहता है। अच्छा। इसी तरह साफ रहता है, उसमें मतलब कोई गंदा गंदा मंदा नहीं आता है। अच्छा। पहले 2010 में जो सैलाब हुआ था, ये दरिया सारा गंदा था, ये बिल्कुल साफ था। फिर 2022 में जो सैलाब आया था, ये दरिया बिल्कुल गंदा था, ये साफ पानी था, बिल्कुल साफ सुथरा पानी था। ये इधर 2 मिनट का रास्ता है, दरख्त के नीचे से निकल रहा है, ये सारा चश्मे का पानी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताएं कि सयाहों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सहियों के इलाज, सही जो सही भी इधर आता है वो इधर के ये पानी जरूर पीता है और अपने साथ लेकर भी जाता है। अच्छा जब भी लेकर के ज्यादा लोग इधर से लेकर जाते हैं, कैन भर कर लेकर जाता है इधर से। अच्छा बोतल कैन भर कर लेकर जाता है इधर। ठीक, हाँ। ठीक। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर इन्होंने यहाँ केबिन भी लगाया है, अगर आपने चाय पीनी है, पकौड़े वगैरह, यानी अगर आप थके हो तो बेहतरीन किस्म की चाय भी यहाँ दस्तियाब है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो खैर आप मत पिए, मैं इसका नहीं कहूँगा कि आप वो पिए, क्योंकि ये पानी अगर आप पीते हैं तो आपकी सारी थकावट ख़त्म। मैं तो खुद यहाँ ज़रूर रुकता हूँ और पानी पीता हूँ और फिर या महोडन झील चला जाता हूँ या वापस मतलब जो भी रास्ता हो उस तरफ से मैं निकलता हूँ। तो जितने भी सयाह यहाँ आते हैं इनके लिए यही है कि रास्ता तकरीबन पुख्ता है, चश्मे शपा तक आप अपनी गाड़ी में आ सकते हैं, यानी छोटे बड़ी गाड़ी में आप आराम से आ जा सकते हैं। और आगे जो रास्ता है वो थोड़ा सा वो बता रहे हैं कि ग्लेशियर आया हुआ है, वहाँ पर छोटे गाड़ी जो है ना वो इसका गुजर मुश्किल है। तो यही वजह है कि हमने अपनी एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी और अब हम यहाँ से पैदल जाएंगे। कहते हैं कि तकरीबन कोई 10-15 मिनट या 20 मिनट का पैदल रास्ता है। तो यही सूरत हाल है। मेरा ख्याल है चश्मे शपा में यहाँ इतना ही काफ़ी है। अगली दफ़ा किसी और व्लॉग में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।